السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ تو میں شروع کر رہی ہوں ایک اور نئی ناول. لیکن ناول شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح کہوں گی کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیجئے، اور اگر آپ کو میری سٹوریز، میری کہانیاں پسند آتی ہے تو اپنے کانٹیکٹس میں شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں. تو یہ نئی کہانی ہے، اس کا نام ہے زہر چشم. اس کی رائٹر ہے بیلا بخاری، اور یہ کہانی مجھ سے ریکویسٹ کی گئی ہے. تو میں شروع کرتی ہوں زہر چشم پارٹ 1. میرون ڈریس میں براؤن کلر کے بالوں والی پیاری سی مگر مغرور سی لڑکی روٹھی ہوئی اپنے روم سے باہر نکلتی ہے. سیڑھیاں اترتے ہوئے اس کا لمبا دوپٹہ آدھا اس کے کندھے پر اور آدھا فرش پر تھا، جو کہ نرم سرخ قالین سے مزین تھا. ماتھے پر غصے کی وجہ سے لکیریں بنی ہوئی تھیں، کالی سیاہ آنکھوں میں نمی تیر رہی تھی. اونچی آواز میں وہ اپنے ڈیڈ کو بلا رہی تھی. آس پاس ملازم سر جھکائے کھڑے، چہرے پر دبی دبی مسکان تھی ان کے، کیونکہ ان کی معصوم میم غصے میں تھی. یہ ان کے غصے کی نشانی تھی. وہ اپنے ڈیڈ کو اونچی آواز میں چلا کر بلاتی تھی. بے شمار سیڑھیاں اترتی ہوئی وہ اپنے غصے پر قابو پانے کی کوشش کر رہی تھی. بالآخر وہ اپنے ڈیڈ کے روم تک پہنچ گئی اور روم پر ناک کرنے لگی. چاہے وہ جتنا بھی غصے میں تھی، مینرز نہیں بھولتی تھی، تو ناک بہت آہستہ سے کر رہی تھی. اس کے ناک کرنے کے انداز سے کمرے میں موجود اس کے ڈیڈ کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی. کم ان. اجازت ملنے پر وہ روٹھی ہوئی لڑکی اندر جاتی ہے. جیسے ہی اپنی ڈیڈ پر نظر پڑتی ہے، کب سے روکے ہوئے آنسو جھلک پڑتے ہیں. وہ بھاگ کر ان کے گلے لگتی ہے. چشم، کیا ہوا؟ کس نے تمہیں ہرٹ کیا؟ ڈیڈ، وہ بھائی مجھ سے ناراض ہو گئے ہیں. کیوں؟ کیا ہوا؟ آج شاپنگ کرنے کا پروگرام تھا ہمارا، پر اب بھائی کی وجہ سے کینسل ہو گیا. چشم، اصل وجہ بتاؤ. ڈیڈ، وہ بھائی کا فیوریٹ پپی آج صبح کے وقت میرے کمرے میں پتہ نہیں کیسے آ گیا. بس میں نے ان کے پپی کو ملازم سے کہہ کر باہر پھینکوا دیا. کیا؟ آپ نے سچ میں ایسا کیا؟ اپنے ڈیڈ کی غصے بھری آواز سن کر وہ اندر ہی اندر تھوڑا سا ڈر گئی تھی. وہ ڈیڈ، آپ تو جانتے ہیں نا، مجھے پپی ڈاگس بالکل بھی پسند نہیں ہیں. مجھے ان سے بہت ڈر لگتا ہے. تو بھائی کیوں لے کر آئے ہیں؟ ڈیڈ، تو اس نے باہر پھینکوا دیا. کیا یہ صحیح بات ہے؟ اب آپ کے پاس آ کر میری ناراضگی کا ذکر کر رہی ہے. میر شاہ، جو اپنے ڈیڈ کو چشم کی شکایت کرنے آیا تھا، الٹا اس کے ڈیڈ نے اسے خاموش کروا دیا. میر شاہ. اپنے ڈیڈ کی خفگی بھری آواز سن کر وہ خاموش ہوتا ہو گیا. جب بات ان کی پیاری بیٹی کی ہوتی تھی، انہیں پھر کچھ بھی نظر نہیں آتا تھا، چاہے سامنے ان کا جان سے عزیز بیٹا ہی کیوں نہ ہو. ڈیڈ، آپ بہت روڈ ہے، مجھے آپ سے بات نہیں کرنی. لے جی. چشمہ اپنے بھائی کے گلے لگی ناراض نظر سے اپنے ڈیڈ کو دیکھ رہی تھی. اب علی کی جتاتی مگر مسکراتی آنکھیں اپنے ڈیڈ پر تھی. وہ تو اپنی بیٹی کی پالیٹکس پر حیران تھے. جو آئی تھی اپنے بھائی کی شکایت کرنے، اب اس کی وجہ سے ذرا سا ڈانٹنے پر الٹا ان سے ہی روٹھ گئی اور اپنے بھائی کے سینے میں منہ چھپائے کھڑے ہو گئی. چشم، بھائی ڈیڈ سے کہیں میں ان سے ناراض ہوں. اس کے جواب پر وہ دونوں ہی مسکراتے ہیں. اس کے ڈیڈ ہمیشہ کی طرح دونوں کو گلے لگاتے ہیں اور چشم کا فیوریٹ ڈائلاگ بولتے ہیں. آپ کے ڈیڈ میر شاہ علی سے بھی چشم کی طرح بلکہ اس سے بھی زیادہ پیار کرتے ہیں. ڈیڈ، آئی لو یو سو مچ. چشم کے اظہار پر وہ اس کے سر پر پیار کرتے ہیں. دروازے پر دستک ہوتی ہے. اجازت ملنے پر رحمت بوا جوس کا گلاس تھامے اندر آتی ہے. چشم بیٹیا، یہ جوس پی لو. چلو جلدی سے پی لو، ورنہ آپ کا بی پی لو ہو جائے گا. چشم جوس پی کر اپنے ڈیڈ سے ملتی ہے. ڈیڈ سے ملتے ہوئے نہ جانے کیوں اس کا دل گھبرا رہا تھا. آج اسے ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ اپنے ڈیڈ سے آخری بار مل رہی ہے. یہی سوچتے ہوئے وہ کتنی دیر تک ان کے گلے لگی رہتی ہے.
चश्म चलो भी, तुम शॉपिंग के लिए जा रही हो या रुखसत हो रही हो? डैड, आप हमेशा याद रखिएगा, आपकी बेटी आपसे इस दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार करती है और करती रहेगी। मुझे मालूम है बेटा, आपके डैड भी आपसे सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं। चलो अब जाओ। अपने रूम से हैंडबैग उठाकर वो चली जाती हैं। चश्म के जाने के बाद उसके डैड मीर शाह अली को नसीहत करते हैं। अली, ख्याल रखना बहन का, और गार्ड्स भी साथ लेकर जाना। डैड प्लीज़, गार्ड्स की ज़रूरत नहीं है। जब मीर अली का साया अपनी बहन पर है तो कोई बुरी नज़र उस पर नहीं पड़ सकती। ओके माय सन, आज गार्ड्स ना लेकर जाने का फ़ैसला उनकी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदलने वाला था। इस बात से मीर मेंशन बेखबर था। शॉपिंग के दौरान चश्म किसी की नज़रों के हिसार में थी। जैसे ही वो शॉपिंग मुकम्मल करके अपनी गाड़ी की तरफ जा रहे थे, तभी चश्म रुकती है। अरे भाई, मेरा शॉपिंग बैग जिसमें मेरा फेवरेट हैंड बैग था, वो तो वहीं रह गया है। आप रुके, मैं अभी बस लेकर आती हूँ। नो चश्म, तुम गाड़ी में बैठो, मैं लेकर आता हूँ। वो मीर जैसे ही शॉपिंग मॉल में इंटर होता है, तमाम लड़कियां जो उसकी पर्सनैलिटी की दीवानी हो गई थी, एक बार फिर उसकी झलक देखने पर खुशी से बेहाल हो जाती हैं। मीर शॉपिंग बैग थामे अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ ही रहा था। रास्ते में ही कुछ गुंडे उसे ज़बरदस्ती अपनी गाड़ी में डालते हैं। चश्म जो अपनी भाई की राह तक रही थी, सामने वाला मंजर देखकर वो घबरा जाती है। वो तेज़ ड्राइव करके उस गाड़ी का पीछा करती है। 1 घंटे तक वो उस गाड़ी का पीछा करती है। गाड़ी एक खूबसूरत बंगले में दाखिल होती है। वो भी अपनी कार के साथ उसी बंगले में इंटर कर जाती है। उसकी कार देखकर किसी की आंखें खुशी से चमक उठती हैं। भाई, कार से निकलते ही वो अपने भाई की तरफ देखती है। वो गुंडे जिनके चेहरे नकाब में छुपे हुए थे, उसके भाई को घसीटते हुए हॉल में ले जाते हैं और सोफे पर बैठे शख्स के कदमों में फेंक देते हैं। बॉस, आपका काम हो गया। बॉस कोई जवाब देता तभी मैरून सूट में उसकी हयात जज़्की यानी लाइफ लाइन हॉल में इंटर होती है। उसका बिखरा हुलिया देखकर उसे शदीद गुस्सा आता है। उसके इंटर होते ही सबकी नज़रें झुक गई थी। उस इंसान का गुस्सा ख़त्म नहीं हो रहा था। वो जो हर वक्त अपनी हयात जज़्की को दुपट्टे में रखता था, उसे उसका ढलका हुआ दुपट्टा इस वक्त बहुत बुरा लग रहा था। भाई, चश्म तुम यहाँ क्यों आई? आपको अकेला कैसे छोड़ सकती थी भाई? आंखें खोले। वो गुस्से से उसकी तरफ बढ़ता है और एक ही झटके से खींचता है। वो उसके सीने से जा लगती है। सबसे पहले वो उसका दुपट्टे की तरफ हाथ बढ़ाता है। चश्म उसे परे ढकेलती है और जल्दी से अपना दुपट्टा दुरुस्त करती है। कौन हो तुम और मेरे भाई को अगवा क्यों किया? बोलो, जवाब दो। शक्ल से तो इंतहाई शरीफ इंसान लग रहे हो, मगर हरकतें तुम्हारी उलट ही है। चश्म बोल रही थी। वो तो अपनी हयात जिसकी को दीवाना होकर देख रहा था। वो क्या बोल रही थी उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। वो तो बस उसकी गुस्से में घूरती हुई काली आंखों में उसके हिलते गुलाबी लबों को देख रहा था। और इतने सालों बाद यूं उसे करीब देखने पर, उससे ज़्यादा बात करने पर उसका मदहोश होना तो बनता ही था। उसके हाथ हिलाने पर वो होश में आता है। चश्म जो उससे दूर खड़ी थी, एक बार फिर से खींचने पर उसकी बाहों में कैद हो जाती है। वो उसके कान की तरफ झुकता है। हयात जिसकी, तुम्हें कोई भी मुझसे जुदा नहीं कर सकता। तुम आज से मेरे दिल की दीवारों में कैद हो चुकी हो। यहाँ से रिहाई सिर्फ एक सूरत में मुमकिन है, और वो है मौत। साथ ही वो मुस्कुराता है। चश्म उसके लहजे पर हल्की हल्की लरज रही थी और ख़ुद को छुड़वाने की कोशिश भी जारी थी। मीर अली शाह मुश्किल से आंखें खोलता है। सामने उस बेशरम इंसान की कैद में अपनी बहन को देखते ही उसका खून खौलता है। वो एक ही जिस्त से अपनी बहन से दूर करता है उसे। जलील घटिया इंसान, मीर ख़ानदान की इज्जत पर बुरी निगाह डालने की तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई? चश्म अपने भाई के गले लगकर काँप रही होती है। भाई, ये क्या कह रहे हैं? मैं कैद हो गई? कुछ नहीं हुआ भाई, है ना तुम्हारे पास, डरो नहीं। वो शख्स सुर्ख आंखों से मीर को देख रहा था, जिसने उसकी चश्म को उसे एक पल के लिए छीन ही लिया था। वो अपने आदमियों की तरफ इशारा करता है और चश्म एक बार फिर उसकी पनाहों में थी। छोड़ो मेरी बहन को और दूर रहो। अगर ना छोड़ो तो क्या कर लोगे? वो चैलेंजिंग अंदाज में उससे पूछता है। मीर ने एक ही मिनट में उसके आदमी को ख़त्म कर दिया था। वो फाइटिंग में चैंपियन था। फिर चश्म को उससे दूर करता है।
आखिरी बार कह रहा हूँ, मेरी बहन से दूर रहो वरना अच्छा नहीं होगा। अपने पालतू कुत्तों का हाल तो तुमने देख ही लिया है। वो सामने मरे हुए आदमी की तरफ इशारा करता है। वो शख्स उसकी बहादुरी पर तालियां बजाता है। वैसे तुम गैरतमंद हो, देखकर बहुत अच्छा लगा। हर भाई को ऐसे ही अपनी बहनों की हिफाजत करनी चाहिए। आई एम इम्प्रेस्ड। भाई, मुझे ये शख्स पागल लग रहा है। चले घर यहाँ से। बॉस, वो मौलवी साहब आ गए हैं। वो मुलाजिम को बुलाता हूँ। मुलाजमा को बुलाता है। जाओ, इन्हें लेकर जाओ, तैयार करो। मुलाजमा चश्म की तरफ जाती है। मैम चले। भाई, ये क्या बकवास है? मीर अपने बाजू पर चश्म की सख्त गिरफ्त महसूस करते हुए घुर्राता है। साले साहब, बुरी बात, आज आपकी बहन का निकाह है। भाई, ये क्या कह रहा है? चश्म, परेशान मत हो, मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा। तभी गार्ड्स की फौज इंटर होती है जो मीर को काबू करती है। चश्म अपने भाई की तरफ जा रही थी, उसके कदम जकड़ जाते हैं। अगर तुम अपने भाई को जिंदा देखना चाहती हो तो तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। इनकार करोगी तो तुम्हारा इकलौता भाई मर जाएगा और तुम्हारा बूढ़ा बाप बेचारा पागल ही हो जाएगा। नहीं, आप ऐसा नहीं करेंगे। मैं ऐसा ही करूँगा। चश्म, उसकी बात मत मानो। वो तुम्हें बस यहाँ डरा रहा है। अच्छा साले साहब, आपको सबूत चाहिए तो ये ले। वो टांग पर फायर करता है। ये गोली तुम्हारे भाई की टांग पर भी लग सकती थी। गार्ड जिसकी टांग पर गोली लगी थी वो अपने दर्द को भुलाए अपने बॉस के इशारे पर उठने की कोशिश करता है। जब वो नहीं उठ पाता तो वो उसके सर पर गोली चला देता है। चश्म जब इस जालिम इंसान की तरफ गुस्से से देखती है तो वो बोलता है, मुझसे बेचारे की तकलीफ नहीं बर्दाश्त हो रही थी तो निजात दिला दी। हाँ तो साले साहब, मैं क्या कह रहा था? चश्म अपने सामने पहली बार किसी इंसान को मरता हुआ देख रही थी। खौफ से उसका पूरा वजूद कँपकपा रहा था। आंखें बंद किए वो सोच रही थी, ये सब बुरा ख्वाब हो। कितनी देर आंखें चश्म ने बंद कर रखी थी। वो जिस उम्मीद पर आंखें खोलती है, पूरी ना होने पर मरा हुआ शख्स भी अभी भी उसकी आंखों के सामने पड़ा हुआ था। चश्म अपने भाई की तरफ देखती है। वो अपनी मासूम बहन की हालत समझ रहा था। इस वक्त वो किस जहनी अजियत से गुजर रही थी, चश्म के साथ उसका भाई भी जानता था। चश्म, तुम्हें डरना नहीं है, इधर देखो, मीर भाई तुम्हारे पास है। शाबाश मेरी बहन, खुद पर कंट्रोल करो। चश्म को उसका भाई समझाते और वो ना समझाए और वो ना समझे, ऐसा हो ही नहीं सकता। वो नम आँखों से मुस्कुराकर अपने जान से प्यारे भाई को देखती है। वो मुस्कुराहट जो अपने भाई के लिए थी, उस जालिम इंसान के सामने आने पर आंखें गुस्से की शिद्दत से रेड हो जाती है। तो क्या फैसला किया? चाहे कुछ भी हो जाए, मेरी बहन तुम्हारी बात नहीं मानेगी। मतलब अब मुझे मजबूरन ससुर जी को इन्वॉल्व करना पड़ेगा और उनका फैसला आखिरी फैसला होगा। और तुम दोनों को मानना ही होगा। मुझे मंजूर है डैड, ज़रूर हम दोनों को तुमसे आज़ाद करवा लेंगे। चश्म के लहजे में जो यकीन और मान था, ना चाहते हुए भी उस जालिम इंसान ने उसके यकीन के कायम रहने की दुआ मांगी थी। वो कॉल करता है। बेल जा रही थी। हर गुजरते सेकंड के साथ उनके दिल की धड़कनें भी बढ़ती जा रही थी। हेलो, चश्म की डैड की आवाज़ स्पीकर से उभरती है। सलाम ससुर जी। कौन हो तुम और ये क्या बकवास कर रहे हो? अरे, इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं आप? आपकी तबीयत के लिए ज़्यादा गुस्सा अच्छा नहीं है। मैं नहीं चाहता कि आपकी वजह से मेरी होने वाली बीवी परेशान हो, इसलिए रिलैक्स। क्या मतलब? मैं आपका होने वाला दामाद हूँ, तो रिश्ते में आप मेरे ससुर जी हुए ना। तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई है गुस्ताखी करने की? चश्म के डैड के लहजे में उनके ख़ानदान का गुरूर झलक रहा था। हर गुजरते लम्हे के साथ चश्म के चेहरे की खुशी लौट रही थी। आवाज़ नीची। पहली बार आपसे गलती हुई है, इसलिए नज़रअंदाज कर रहा हूँ, वरना आपको बता देता, मुझसे ऊंची आवाज़ में बात करने वाला अपनी आखिरी सांस कब्र में लेता है। आपके ख़ानदान का इकलौता चश्मो चिराग मीर शाह इस वक्त आखिरी सांसें ले रहा है, सिर्फ़ और सिर्फ आपकी लाडली बेटी की वजह से। दोनों ही आपकी तरह बहुत ज़िद्दी है ससुर जी। अब आप ही फैसला करें। मीर शाह को मैंने ऑफ़र दी, अपनी बहन के निकाह में बतौर गवाह शामिल हो जाए और निकाह के छुआरे खाकर यहाँ से ज़िंदा सलामत चला जाए।
वो है कि मान ही नहीं रहा। एक ही रट लगाई हुई है, अपनी बहन को साथ लेकर जाऊंगा, साथ लेकर जाऊंगा। यही जवाब आपकी बेटी का भी है, वो भी निकाह से इनकार कर रही है। उनके मानने से मुझे कोई सरोकार नहीं। हाँ, ना मानने की सूरत में आपके बेटे की जान तो जाएगी, इसकी गारंटी मैं आपको देता हूँ, और पूरी दुनिया मुझे जानती है। पॉइजन? अब हाँ, पॉइजन अपनी गारंटी का पक्का है। क्या मतलब? तुम वही सफाक इंसान, बल्कि दरिंदा हो, जिसकी दरिंदगी से पूरी दुनिया वहशतज़दा है। हा 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 ससुर जी, क्या तारीफ की है, शुक्रिया। आप अब फैसला करें, बेटा या बेटी। आपका फैसला मुझ चीज़ को भी मंजूर होगा। चश्म के डैड के लिए फैसला करना नामुमकिन था। एक तरफ बेटा था तो दूसरी तरफ जान से प्यारी बेटी थी। ससुर जी, वक्त बहुत कम है, जल्दी बताए। साथ ही वो सोफे पर बाजू फैलाकर बैठता है, तनकीदी निगाहों से चश्मा और उसके भाई की तरफ देखता है। बस उन्होंने एक लम्हे में फैसला किया, हमेशा की तरह बेटी पर बेटे को फौकियत दी। चश्म तंजिया निगाहों से उस जालिम इंसान की तरफ देख रही थी। बेटा, बेटे को छोड़ दो। उनके फैसले से चश्म की आंखों में बाप की मोहब्बत का जो गुरूर था वो उसी वक्त ख़त्म हो गया था। साथ ही मीर भी बेयकीन से अपने डैड के फैसले को सुन रहा था। चश्म की आंखों में बच जाने की आखिरी उम्मीद जो थी वो दम तोड़ गई थी। वो लड़खड़ा कर नीचे गिरती है। डैड, डैड, ये क्या कह रहे हैं आप? मीर शाह, तुम चुप रहो, अभी वापस घर आओ। मगर डैड। शुक्रिया ससुर जी। वो फ़ोन बंद करता है। गार्ड्स उसके इशारे पर मीर शाह को वापस छोड़ने के लिए जा रहे थे। नहीं नहीं, छोड़ो छोड़ो मुझे। चश्म, मैं तुम्हें अपने साथ लेकर ही जाऊंगा। वो गार्ड्स को परे ढकेल कर अपनी बहन के पास पहुंचता है। चश्म, मेरी जान, इधर देखो। वो वीरान निगाहों से उसकी तरफ देखती है। उठो, हम किसी का फैसला नहीं मानेंगे, तुम मेरे साथ चल रही हो, उठो उठो, शाबाश। वो अपना हाथ उसके हाथ से छुड़ाती है। भाई, आप चले जाइए, डैड का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। चश्म निगाहें ज़मीन की तरफ करती है ताकि आंखों से बहने वाले आंसू छुपा सके। एक बार फिर और बिन्ते हव्वा ख़ानदान के नामो निशान को बचाने के लिए फिर से कुर्बान कर दी गई। नज़्म। गौर से देखो मुझे, मैं बिन्ते हव्वा हूँ, जिसकी ज़िंदगी रंग बिरंगी तितलियों के साथ खेलते हुए गुजर रही थी। बाप के घर की सारी खुशियाँ जिसकी मुट्ठी में कैद थी, एक दिनों पुरानी फरसूदा रिवायात को बचाने के लिए कुर्बान कर दी गई। उसकी रजामंदी, उसकी खुशी किसी के लिए कोई मायने न रखती थी। कुर्बानी उसकी रायगा नहीं जाएगी। वो आने वाली बिन्ते हव्वा के लिए ये रस्म ख़त्म करेगी। गौर से देखो मुझे, गौर से देखो मुझे। बेला बुखारी। मीर अली शाह शिकस्त ज़दा सा अपने सामने उसे मौत के सफ़र पर जाता हुआ देख रहा था। वो मुलाजमा के साथ जब तक कमरे में दाखिल नहीं हुई, उसकी निगाहें अपनी बहन को शायद आखिरी बार देख रही थी। मीर अली शाह भी फिर वहाँ से चला जाता है। अब पीछे रह गई थी चश्म और उस जालिम इंसान की मोहब्बत, जो आने वाले वक्त में सिर्फ़ और सिर्फ अजियतों और तकालीफ से मज़ीन होगी। कमरे में जाते ही मुलाजमा को बाहर जाने का कहती है। उसके जाते ही चश्म फर्श पर बैठती है और बेइंतहा रोती है। वो सोच भी नहीं सकती थी ज़िंदगी ऐसा मोड़ लेगी। उसकी सारी खुशियों को गम निगल जाएंगे। आज चश्म बेतहाशा रो रही थी। उसके गिरने वाले आंसू पहली मर्तबा बेमोल हुए थे। उसे याद आ रहा था एक भी आंसू देखकर कैसे उसके डैड बेचैन हो जाते थे। जब तक वो हंसती नहीं थी उनको सुकून ना मिलता था। वो रोते हुए अपनी सोचों में गुम थी। तभी किसी के कदमों की आवाज़ आती है। जैसे जैसे आवाज़ करीब आ रही थी, घबराहट बढ़ती जा रही थी। दरवाज़ा खुलता है और वही जालिम इंसान अंदर दाखिल होता है। वो जो उसकी दिलजोई करने आया था, फर्श पर बैठा देखकर गुस्से की शिद्दत से उसकी तरफ बढ़ता है। खड़ी हो जाओ। वो बहरी बनी बैठी रहती है। तुमने सुना नहीं, मैंने कहा खड़ी हो जाओ। अब की बार वो चीखता है, मगर सामने वाली शायद सच में बहरी हो चुकी थी। पॉइजन उसके बाजू पर पकड़ सख्त करता है। वो कोई रिस्पॉन्स नहीं देती। अब उसकी पकड़ सख्त से सख्त होती जा रही थी। उसकी उंगलियां चश्म के बाजू में जैसे धंसती चली जा रही थी।
उसे तकलीफ महसूस नहीं हो रही थी। उसने खुद से अहद कर लिया था, वो मीर अली शाह की बहन है, उसे किसी से डरना नहीं है और ना ही झुकना है। वो चश्म को झटके से ऊपर उठाता है। बाजू पर पकड़ अब भी वैसी थी। चश्म बिना उसकी तरफ देखे आंखें झुकाई खड़ी थी। वो उसका चेहरा ऊपर करता है। अब वो उसके एक्सप्रेशंस देखना चाहता था। बाजू अभी भी कैद में था। चश्म का चेहरा तकलीफ की शिद्दत से सुर्ख हो गया था। जब वो मज़ीद ज़ोर से बाजू पक जकड़ता है, आंसू तकलीफ की शिद्दत बर्दाश्त नहीं कर पाते। आंसू देखकर वो मानी खैसा मुस्कुराता है। उसकी मुस्कुराहट देखकर चश्म अपने आंसू से नाराज़ हो जाती है जिन्होंने उसकी कमज़ोरी को बयान कर दिया। आंसू बेमोल होने से पहले उसकी उंगली पर था हयात जिसकी। बहुत अच्छा लगा। अगर सामने वाला टक्कर का हो तो मुकाबले का मज़ा आता है। मैंने सुना हुआ था मीर शाह की बहन का दिल चिड़िया जितना है। मुझे उम्मीद थी तुम डरपोक लड़की निकलोगी, मगर तुम्हारी इस हठधर्मी को कहीं ना कहीं बुज़दिली से थोड़ा ऊपर वाली चीज़ का नाम दूंगा। मतलब बहादुरी और बुज़दिली के दरमियान का जज्बा तुम समझ गई होगी। तुम अपने भाई की शह पर मेरा मुकाबला कर रही हो। बहुत खूब। आपकी तौक़ियात पर पूरा ना उतरने की हमेशा कोशिश करूँगी और ये मीर शाह की बहन का वादा है। देखेंगे। फ़िलहाल तैयार हो जाओ, निकाह के लिए दुल्हन का इंतज़ार किया जा रहा है। दुल्हन नहीं, जिंदा लाश। बेफिक्र रहे, आज मैं ऐसा तैयार होंगी दुनिया में कोई अगवाशुदा लड़की आज तक तैयार नहीं हुई होगी। अब अगर आपकी इजाज़त हो तो ये जिंदा लाश तैयार होना चाहती है। ज़रूर। चश्म उसके जाने के बाद वॉशरूम में बंद हो जाती है और फिर दिल खोल कर रोती है। मिरर में अपने बाजू पर उसकी ज़िंदगी के निशान देखकर उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अपनी फैमिली से जुदा होने की तकलीफ़ के आगे ये तकलीफ़ कुछ न थी। वो लहंगा पहनकर जैसे ही बाहर आती है, ब्यूटिशन उसी मुलाजमा के साथ उसके इंतज़ार में खड़ी होती है। वो चुप करके ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठ जाती है और ब्यूटिशन अपना काम शुरू करती है। तकरीबन 1 घंटे बाद वो मुकम्मल तैयार थी। उसके कहने पर वो आंखें खोलती है और सरसरी सा खुद को देखती है, फिर मुस्कुराती है। क्या तुमने आज से पहले किसी लाश को इस तरह सजाया है? ब्यूटिशन उसके सवाल पर हैरान सी उसकी तरफ देखती है। अरे, आप घबरा क्यों रही हैं? रिलैक्स। वैसे मरने के बाद इंसान ज़्यादा खूबसूरत हो जाता है। देखो, तुमने आज एक जिंदा लाश को तैयार किया है। साथ ही वो रोते हुए मिरर में देखती है। उसकी हालत पर वो दोनों मुलाजमाएं भी रो देती है। उन्हें इतनी प्यारी लड़की की अपनी तकलीफ़ महसूस होती है। रोते रोते वो मुस्कुराती है। ओह देखो तो, काजल फैल गया है, प्लीज़ इसे ठीक कर दो। ब्यूटिशियन उसका काजल साफ कर रही थी। वो ऐसा कर नहीं पा रही थी, वजह उसका हाथ काँप रहा था। चश्म इसे तकलीफ़ में नहीं देख सकी तो उन्हें जाने की इजाज़त दे देती है। वो खुद ही अपना काजल ठीक करती है। अब वो बेड पर बैठी है क्योंकि मौलवी साहब उसकी रजामंदी उसका जवाब लेने के लिए आ रहे थे। वो बिना कोई मसला किए 3 बार कबूल है कह देती है और यूं निकाह की रस्म पूरी हो जाती है। आज से उस जालिम इंसान का नाम चश्म के नाम के साथ ना चाहते हुए भी जुड़ चुका था। निकाह के बाद उसे किसी और आलीशान कमरे में ले जाते हैं। अब वो बेड पर बैठती है। वो जानबूझकर कमरे में लेट जाता है। वो देखना चाहता था चश्म उसका इंतज़ार करेगी या नहीं। रात के तकरीबन 2 बजे वो कमरे में आता है। सामने ही दुश्मन जा घूंघट डाले उसका इंतज़ार में शायद सो चुकी थी। वो बिना कोई आवाज़ किए उसके करीब बैठता है। जैसे ही उसका चेहरा देखता है, कितनी देर वो बस उसके हसीन चेहरे को यकटक देखता ही रहता है। खुद मुख्तारी का एहसास गालिब होता जा रहा था। वो अपने मुंह ज़ोर जज्बात से मगलूब होकर अपनी मोहब्बत का पहला लम्स उसके माथे पर छोड़ता है, मगर ऐसा करने से उसका दिल नहीं भर रहा था। अब वो उसकी आंखों को छूता है, दाएं गाल पर, फिर बाएं गाल पर। वहाँ से उसका रुख अब उसकी सुराहीदार गर्दन थी। उसका दहकता हुआ लम्स अपनी गर्दन पर महसूस होते ही चश्म झटके से उसे परे करती है। वो उसका ब्लश चेहरा देखकर कहकहा लगाता है। उसके मुस्कुराते हुए लब चश्म की बात पर सिमट जाते हैं। आपको क्या लग रहा था मुझे नींद में देखकर आप अपनी मनमानियाँ करेंगे? मैं जाग रही थी, देखना चाहती थी मेरी रजामंदी आपके लिए अहम होगी।
میں تو بھول ہی گئی، جو شخص مجھ سے زبردستی نکاح کر سکتا ہے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ آپ کو خود سے دور کیا، مجھ سے غلطی ہوئی، وہ خود اس کے پاس ہوتی ہے۔ لے، آپ اپنی خواہش پوری کریں، مجھے حاصل کرنا چاہتے تھے نا، تو لے، میں اپنا آپ سونپ رہی ہوں۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہیں؟ آپ بھی تو گدھ ہے جو مردہ کو بھی نہیں چھوڑتے۔ میں بھی تو مردہ ہوں، جذبات اور احساسات سب ختم ہو گئے، تکلیف اور اذیت محسوس ہی نہیں ہوتی مجھے۔ کیا ہوا؟ کیا کچھ غلط کہہ دیا میں نے؟ وہ اپنا دوپٹہ اتار پھینکتی ہے اور یہی اس کی برداشت ختم ہوتی ہے۔ وہ تھپڑ مار رہا تھا مارنا چاہتا تھا مگر نہیں مار سکتا۔ کیا ہوا؟ رک کیوں گئے؟ ماریں گے مجھے؟ جیسے زبردستی بازو زخمی کر دیا ویسے ہی تھپڑ بھی مار لے، مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ روتے روتے وہ بے ہوش ہو جاتی ہے اور پوائزن اسے ہوش میں لانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس کی نبض مدھم چل رہی تھی، وہ ڈاکٹر کو بلا رہا تھا۔ چشم سب سن رہی تھی، وہ مسکرا رہی تھی۔ اب اس کی ہمیشہ کے لیے اس تکلیف سے جان چھوٹ جائے گی۔ شاہمیر یہاں سے جانے کے بعد گھر نہیں جاتا۔ وہ تیز ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ اس سے یہ بات بھول نہیں رہی تھی اس کے ڈیڈ نے کیسے اس کی بہن کو قربان کر دیا۔ کیا وہ اس بوجھ کے ساتھ زندہ رہ پائے گا؟ نہیں، اسے اب اپنے آپ سے نفرت ہو رہی تھی، جس کی وجہ سے اس کی جان سے پیاری بہن ہمیشہ کے لیے اسے چھین لی گئی تھی۔ وہ گاڑی چلائے جا رہا تھا، گاڑی کو بریک آنے والی کال سے لگتی ہے۔ کال ان کے فیملی ڈاکٹر کی تھی، جس میں اس کے ڈیڈ کو ہارٹ اٹیک ہونے کی خبر ملی تھی۔ نو ڈیڈ، آپ کو کچھ نہیں ہوگا، میں آ رہا ہوں۔ راستے میں کئی بار ایکسیڈنٹ ہوتے رہ گیا۔ وہ مشکل سے خود کو ہوش میں لانے کی کوشش کر رہا تھا۔ جب اسے کڈنیپ کیا گیا تھا تو اس وقت انہوں نے اسے کچھ انجیکٹ کیا تھا، یہی وجہ تھی وہ اپنی بہن کو بھی واپس نہیں لا پایا تھا۔ جیسے تیسے وہ ہاسپٹل پہنچتا ہے، جہاں گارڈز اس کی طرف بڑھتے ہیں۔ سامنے ہی ان کا فیملی ڈاکٹر آپریشن روم سے نکلتا ہے۔ ڈیڈ کیسے ہیں اب؟ میر بیٹا، گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے، اب وہ خطرے سے باہر ہے، مگر دھیان رہے انہیں اب کوئی صدمہ نہ ملے، اگلی بار ہم بچا نہیں پائیں گے۔ شور ڈاکٹر، کیا میں ان سے مل سکتا ہوں؟ دھیان رہے زیادہ باتیں نہیں کرنی، آپریشن تو کب کا ہو چکا تھا، اب وہ ہوش میں ہے۔ جیسے ہی وہ ہاسپٹل کے روم میں انٹر ہوتا ہے، سامنے ہی وہ مختلف مشینوں کے ساتھ سانسیں لے رہے تھے۔ ڈیڈ، میر شاہ بیٹا، مجھے معاف کر دینا، چشم کی خاطر ایسا کیا۔ وہ انسان نہیں حیوان ہے، اگر ایسا نہ کرتا تو تمہاری جان تو لیتا ہی، ساتھ چشم کو ساری زندگی تکلیف سے دوچار کرتا رہتا۔ مجھے پتا ہے میں نے کس طرح یہ فیصلہ لیا، میں جانتا ہوں چشم کی کیا حالت ہوگی، اسی وقت مجھے ہارٹ اٹیک آیا تھا۔ ریلیکس ڈیڈ، آپ بس جلدی سے ٹھیک ہو جائے، چشم کو ہم واپس ضرور لے آئیں گے۔ پوائزن کی پریشانی اس کی آنکھوں سے عیاں ہو رہی تھی۔ وہ جتنا پتھر دل تھا، اسے اس حالت میں دیکھ کر سچ میں اس کا دل گھبرا گیا تھا۔ ابھی تو اسے اپنی محبت کا بتانا تھا، اگر اسے کچھ ہو گیا تو؟ نہیں، اسے کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ سر، ان کا نروس بریک ڈاؤن ہوا ہے، انہیں صدمہ لگا ہے، آپ انہیں خوش رکھنے کی کوشش کریں، جتنا زیادہ یہ خوش رہیں گی اتنا ہی ان کی صحت کے لیے اچھا ہے۔ مجھے لگتا ہے اس سے پہلے بھی ان کا نروس بریک ڈاؤن ہو چکا تھا۔ اینی وے، یہ میڈیسن آپ ریگولرلی انہیں کھلائیے گا۔ اوکے، اب آپ جا سکتی ہیں۔ ملازمہ کو وہ پرچی تھماتا ہے اور خود اس کے پاس ہی بیٹھ جاتا ہے۔ نیند میں بھی وہ بے چین تھی، آنسو اب بھی متواتر سے بہہ رہے تھے۔ یہ سب پوائزن کے لیے برداشت کرنا آسان نہ تھا، پہلے ہی اس کی وجہ سے یہ حالت ہوئی تھی، اب مزید اور اپنی حیات چسکی کو خود سے بدگمان نہیں کر سکتا تھا۔ اسی رات وہ خود سے عہد کرتا ہے، اسے کوئی تکلیف نہیں دے گا۔ اپنے فیصلے پر مطمئن سا وہ اس کے پاس ہی لیٹتا ہے، چشم کی زخمی بازو پر اس کا ہاتھ جیسے ہی لگتا ہے وہ سسکتی ہے۔ پوائزن جلدی سے اس کے بازو کو دیکھتا ہے، آج اپنی کی گئی سختی کا یہ نقصان ہوا تھا۔ وہ اس کے زخمی بازو پر اپنا لمس چھوڑتا ہے، ایسا کرنے سے شاید وہ اپنی غلطی کا مداوع کر رہا تھا، اس بات سے بے خبر اس کی یہ حرکت چشم کو مزید اذیت دے رہی تھی۔ وہ اسے آئنمنٹ لگاتا ہے اور اب احتیاط سے اس کے قریب ہوتا ہے۔ جوڈایم افسوس دمام، آئی ایم سوری،
وہ اس کے کان میں سرگوشیاں کر رہا تھا، اپنے کی معافی مانگ رہا تھا۔ ان سب سے بے خبر چشم صرف اور صرف اس کے سونے کا انتظار کر رہی تھی۔ اسے اپنے ڈیڈ کے پاس اور اپنے بھائی کے پاس جانا تھا۔ پوائزن باتیں کرتے کرتے وہیں سو گیا تھا۔ کچھ دیر تک چشم آنکھیں بند کیے ہوئے سوتی رہی۔ جیسے ہی اس کی پکی نیند کا اندازہ ہوتا ہے، وہ آہستہ اٹھتی ہے اور بنا آواز کیے روم سے باہر جاتی ہے۔ ڈیڈ، مجھے پتا ہے آپ کی طبیعت بہت خراب ہے، میں آ رہی ہوں۔ وہ بھاگ رہی تھی، مگر مینشن اتنا بڑا تھا کہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ تمام گارڈز اپنی ڈیوٹی پر چوکنے کھڑے تھے۔ وہ درخت کی اوٹ میں چھپی ہوئی ان کے وہاں سے ہٹنے کا انتظار کر رہی تھی۔ اس کی کمر پر سرسراتی ہوئی انگلیاں محسوس ہوتی ہے۔ وہ ڈر کر پیچھے دیکھتی ہے، کوئی دکھائی نہیں دیتا۔ تھینک گاڈ، بچ گئی۔ اف، یہ گارڈز ہٹ کیوں نہیں رہے ہیں؟ ایک تو مجھے دیوار پھلانگنا بھی نہیں آتی۔ وہ پیچھے کھڑا اس کی ساری باتیں سن رہا تھا۔ کاش مجھے یہ سب آتا۔ اف، اب کیا ہوگا؟ چاہے جو کچھ ہو جائے، میں یہاں نہیں رہوں گی۔ حیات جس کی وہ جو خود سے باتیں کر رہی تھی، اس کی آواز سن کر سکتے میں آ جاتی ہے۔ اس کا رخ اپنی طرف کرتا ہے۔ بہت شوق ہے تمہیں بھاگنے کا؟ کوئی بات نہیں، آج تمہیں ایسی سزا دوں گا، پھر کبھی یہاں سے جانے کا خیال بھی نہیں گزرے گا۔ ساتھ ہی وہ اس کا ہاتھ اتنے زور سے پکڑتا ہے کہ چشم کو لگ رہا تھا جیسے اس کے جیسے اس کی ہڈیاں ٹوٹ ہی جائے گی۔ وہ اسے اپنے مینشن کے سب سے ویران سائڈ پر لے جاتا ہے۔ چشم جیسے ہی پنجرے میں قید مختلف خوخار جانوروں کو دیکھتی ہے، ڈر سے اس کا وجود کانپنے لگتا ہے۔ یہ سب جانور دیکھ رہی ہو نا، دیکھنے میں خوخار ہے، مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچاتے، دیکھو۔ ساتھ ہی وہ سانپ اٹھاتا ہے۔ چشم کی چیخ نکل جاتی ہے۔ اگر تم اپنی جگہ سے ہلی تو نہ صرف یہ بلکہ ان پنجروں میں موجود تمام جانور کی خوراک آج کی رات تم ہی بنو گی۔ دھمکی سن کر اس کے پاؤں جیسے زمین میں دھنس گئے تھے۔ وہ آنکھیں بند کیے اپنی موت کا انتظار کر رہی تھی۔ تم نے مجھے یعنی پوائزن کو چھوڑنے کا سوچا بھی کیسے؟ اس کی سزا تو تمہیں ضرور ملے گی۔ آنکھیں کھولو، وہ دہاڑتا ہے۔ اس کی خوفناک آواز اس ویرانے میں بہت زور سے گونجتی ہے۔ چشم روتے ہوئے آنکھیں کھولتی ہے۔ وہ اس کی طرف دیکھتی ہے جو خوخار نظر سے اسے دیکھتا ہے، اور خود بھی وہ خطرناک جانور ہی لگ رہا تھا۔ سانپ جو اس کے ہاتھ میں تھا، اس کی گردن پر پکڑ سخت ہوتی جا رہی تھی۔ وہ بیچارہ اپنا جسم ہلا کر خود کو بچانا چاہتا تھا۔ پوائزن ایک ہی وار سے اس کی گردن کاٹ دیتا ہے۔ مردہ سانپ کو وہ گدھ کے پنجرے میں پھینکتا ہے جسے وہ تیزی سے کھا رہے تھے۔ تم کہہ رہی تھی نا، گدھ مردہ کو بھی نہیں چھوڑتے۔ ذرا سوچو، اگر اس سانپ کی جگہ تمہارا مردہ جسم ہوتا تو وہ ایسے ہی تمہیں کھا رہے ہوتے۔ نہیں، پلیز مجھے جانے دو، میرے ڈیڈ کے پاس مجھے جانا ہے۔ تم پھر سے وہی بات دہرا رہی ہو جس سے مجھے غصہ آتا ہے۔ ٹھیک، تم ایسے نہیں مانو گی۔ وہ ایک چھوٹے سے کمرے میں اسے کھینچ کر لے کر جاتا ہے جہاں مختلف نسلوں کے خوخار کتے تھے۔ چشم کو دیکھتے ہی ان کی رال ٹپک رہی تھی۔ وہ جانتے تھے ان کا مالک آج پھر سے کوئی مجرم ان کی خوراک بنانے کے لیے لایا ہے۔ اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلی قسط میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا۔ یہ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہے۔ اگلی قسط میں پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔